If you don't have time to read the Constitution, please read the preamble. That is enough. Understand what the four words mean. When I say you must read the Constitution, I do not mean just courts, lawyers, judges, and the people who have cases. When you open it, you will see it begins with the noble words, we the people. Yes, all of us should read the Constitution, practice it, not just at fixed hours like office timings, but every second of the day. Of the four words that are highlighted in the Constitution, justice, equality, liberty, and fraternity. I'm sure you have a fair idea of what justice, liberty, and equality mean. But fraternity is a slippery concept. And it means you think of everyone as yourself, as your kin. Feel their joys and sorrows as yours, and know there is no difference. We, the people, have no differences and distinctions. That is why our preamble starts with those words. Even a child can understand them. We, the people. We, the people of India. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ আমরা ভারতের জনগণ आम्ही भारताचे लोक हम भारत के लोग आम्ही भारतार लोके ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ नाम इंडिया मक्कल हम भारत के आवाम आम्ही भारतार लोकসমূहे আমরা ভারতের জনগণ व त्याच्या सर्व नागरिकांस एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य गठन करिबा निमित्त উহা সকল নাগরিক চাহাতে इंसाफ समाजी माशी और सियासी భావము భావ ప్రకటన విశ్వాసము ధర్మము ஆராதனா படிநிலை மற்றும் வாய்ப்பு சமத்துவம் ஆகியன உறுதி செய்திட ਅਵਰਕெல்லாம் ਇਡਾਇਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949. दृढ़ संकल्प होकर हम आज एकीकृत हुए हैं। सबको मेरे तरफ से जय हिंद और जिंदाबाद। Zindabad, friends. Today we got together to celebrate the Indian Republic and the Indian Constitution, a gift that has been left to us by our forefathers of a wonderful document which acts as a guide, a mentor, and a reference point for all public action in this country. Today we bring in with Satyameva Jayate, Save the Constitution, Save India, because we are at a point where many of the aspects of the Constitution are under threat. So I come to you with pride in having a wonderful Constitution, in having it to guide me in all the years that I've worked with the MKSS, with the NFIW, with the NCPRI, with many other formations and organizations in public action for people's benefit and for rights. It is a document that was prepared with great foresight by Baba Saheb Ambedkar and his team, because they had to stitch together various language groups, various cultures, various kinds of religions, varied beliefs, and varied ways of living into a document that would stand by us to unite us and to give us common principles and goals through which to achieve it. We have also been left with a lot of work to do to realize what has been the disparity and the discrimination that has been not only part of the heritage of this country in terms of its history, but in terms of continuing social conditions. Today, as I speak to you, I value the Constitution because it has been for me a text which has not only guided me through my work in various ways, but it's also been a reference point, and it's also helped me monitor my own action to see whether I work for the benefit of people or don't. So whether it's equality, liberty, fraternity, the right to freedom of expression,
free and open expression and the right to express dissent, the Constitution has been a constant guide. And today, again with all of you, I want to celebrate it in all the Indian languages that we have, to think of the Constitution as an Indian Constitution. I speak to you in English. I can speak Hindi, but I'm Tamil speaking, and I've always felt that the languages of India are as important as the regional differences, as our plurality, as our diversity, to make us come together as a nation. So you will hear people taking the pledge in many Indian languages. You will also hear people talking in many Indian languages. And I would crave your indulgence to have patience to listen to languages you don't understand. But to think that India just consists of Hindi and English is a big mistake, because there are areas in which Hindi is not spoken and English is also not spoken. So to reach our people, we have to learn to relate to them in more ways than one. I stand with you here today to say again that we unite only with the Indian Constitution. If there is no Indian Constitution, the way it is today, if it's corroded, if it's weakened, and if its effectiveness is lessened, then we as a people will not be able to stand together the way we have in the last 75 years. So I say to you once again, Satyameva Jayate, let truth be victorious. And I say to you, save the Constitution, save India. जिंदाबाद साथियों, सत्यमेव जयते। आज हम लोग एक नारा के साथ और एक नारे को मानते हुए इकट्ठे हुए हैं। उसमें हम कह रहे हैं कि देश बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। इस संविधान के ऊपर इतना जोर क्यों है और इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे लिए क्यों है, इसमें मैं अपने विचार आपके सामने आज रखना चाहती हूँ। वैसे मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन, सूचना के जन अधिकार के राष्ट्रीय अभियान और भारतीय महिला संगठन और बाकी बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मुझे पूरी जिंदगी ये संविधान के मूल्यों को साकार करने में लगा है। और ये संविधान मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा है? दो कारणवश बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं भारत की निवासी हूँ। भारत में 22 भाषाएं हैं। मैं हिंदी बोल रही हूँ, मगर मैं तमिल भाषी हूँ, और मेरे लिए भी तमिल से हिंदी, हिंदी से मलयालम, मलयालम से तेलुगु, तेलुगु से कन्नड़ा, कन्नड़ से बांग्ला, क्योंकि मेरा ससुराल का भाषा बांग्ला है। मैं हर एक भाषा में अपने आप को भारतीय महसूस करती हूँ। मगर हमारे देश में हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, और कभी कभी हम यही सोचते हैं कि 22 भाषाओं में केवल हिंदी अंग्रेजी बोल के हमारी बात चलेगी। तो आज हम लोग इस सत्यमेव जयते को और ये संविधान की खुशियों को मनाते हुए हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे भाषाओं में अपनी बात को हम रख पाए। हम वो जो उद्देशिका है उसको भी हम लोग हर भाषा में पढ़ पाए, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि हमारा देश कितना बड़ा है, कितने उसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, और कितने अलग अलग संप्रदाय हैं, कितने अलग अलग खान पीन है, और इन सबको मिलकर ये देश कैसे बना। आपको ये पता है कि जब ये संविधान बना, उस समय हमारे संविधान के जो बनाने वाले जो लोग थे, खासकर उनमें से बाबा साहब अम्बेडकर, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस देश को एक कैसे किया जाए, और उसमें एकजुट एक कुछ मूल्य और कुछ तथ्य ऐसे कैसे रखा जाए जिसके ऊपर सब लोग सहमत भी होंगे और उसके लिए एकजुट होकर काम करेंगे। संविधान ऐसा ग्रंथ है, ये महाग्रंथ है, ये एक लोकतंत्र का ग्रंथ है जिसके आधार पर हमारा देश चलता है। आप और मैं चलते हैं। मेरी आज़ादी उसमें है, आपकी आज़ादी उसमें है, हमारे अभिव्यक्ति का अधिकार उसमें है, हमारे सोच विचार का अधिकार उसमें है, हमारे आर्थिक अधिकार उसमें है, हमारे सामाजिक अधिकार उसमें है, वोट देना है तो उसके भी अधिकार उसी में है। ऐसा ग्रंथ छोड़ के गए हैं जिसने अभी हमारे देश को बहुत सालों से एकजुट करके आगे बढ़ाया है। मैं अब चाहूँगी कि आज हम उसको खुशियाँ मनाएं, और उन महापुरुषों के नाम से और उनके काम से हम ये वादा करें कि ये काम को हम आगे ले जाएंगे, सफल करेंगे, अच्छा रखेंगे, और हम गर्व से कह पाए कि सत्यमेव जयते, और ये भी कहेंगे कि हमारा संविधान इस दुनिया को न केवल बहुत अच्छा बताया जाएगा, मगर हम लोगों के लिए ये संविधान एक ऐसा आधार रहा है जिसके तहत मैं और आप और सभी लोग अपने
समानता, अपने आज़ादी, अपने बंधुता और अपने सारे जो अधिकार है उसको पा पाए हैं। आइए हम सबके बातें सुनेंगे। सत्यमेव जयते, संविधान बचाओ, देश बचाओ। तो ये मंदिर मस्जिद बना हुआ नहीं था, उससे पहले बुल्ले शाह ने ये कलाम बनाया था। बहुत पुराना कलाम है। तो उस कलाम का नाम है सठ झगड़ा मस्जिद मंदिर दा सिख तौर तरीक कलंदर। मतलब किसी से झगड़ा मत करो, कोई जो हो जो भाई बन के रो। तो ऐसे कलाम गाया हुआ बुल्ले शाह का, वो भी आपको
प्रीत बुला रब नाल सच्ची रख नीत बुला रख एक दे नाल प्रीत बुला बुला रब नाल सच्ची रख नीत बुला कट के ख्याल प्रीत बुला कट के ख्याल प्रीत बुला बोल ना हो तो पतंदर ना बोल ना हो तो पतंदर ना सट झगड़ा मस्जिद मंदिर था सिख तौर तरीक कलंदर था। बुले शाह ने बोला क्यों कर रहे हो आप, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मंदिर मस्जिद मंदिर पे झगड़ा क्यों कर रहे हो। साले सब झगड़े में क्या है, वो ये कलाम पहले गाया है, क्यों झगड़ा कोई मत करो। सट झगड़ा मस्जिद मंदिर था सिख तौर तरीक कलंदर था। सिख रिंदा वाली चाली को आपको आप निकाली तू बुण मुल्क फलक दा वाली तू पिछे शहर नचावन बंदर दा सट झगड़ा मस्जिद मंदिर दा सिख तौर तरीक कलंदर दा पा कपड़े लीर कतीर मियां बुण मुल्क फलक दा मीर मियां पिछे शहर नचावन बंदर दा सट झगड़ा मस्जिद मंदिर दा सिख तौर तरीक कलंदर दा हथ खंजर तीर कटारन सा भई लोंबड़ भर अचारन सा रख गुरज तेज तरवारन सा पिछे शहर नचावन बंदर दा सट झगड़ा मस्जिद मंदिर दा सिख तौर तरीक कलंदर दा रख एक दे नाल प्रीत बुला रब नाल सची रख नीत बुला कद गेर ख्याल दी रीत बुला पियो छोड़ना हो तो पितंदर दा सट झगड़ा मस्जिद मंदिर दा सिख तौर तरीक कलंदर दा। एक दौड़े में पूरा कलाम आ गया, उस पे रख के सब बाकी सब झूठे। बहुत बढ़िया। तो अभी ये जो पूरे मंदिर मस्जिद के झगड़े चल रहे हैं, इसके बारे में क्या सोच है आपका? इसमें नहीं होना चाहिए, जो जैसे चल रहा है पहले कैसे इंसानियत खत्म हो गई क्यों करे आप। भगवान किसी का खरीदा हुआ नहीं, हमारा मुसलमानों का नहीं है, नहीं हिंदुओं का है, नहीं तो भगवान किसका होता है, जो दाता है उसको भगवान होता है। इसमें भगवान तो ऐसे के चाहे मुसलमान का हो चाहे हिंदू का हो तो भगवान तो सबका सुनता है ना। भगवान ऐसे बोलता है ये नहीं ये मेरे को है या ये दूसरे इसकी हम नहीं सुनेंगे। ये तो बीच में इंसानों की सोच है, कोई कैसी सोच है कोई मीराबाई को बोला, मीराबाई ने मीरा की सखी ने बोला, मीराबाई ने पूछा तेरा भगवान ये कैसे खुश कैसे होगा। मीराबाई को पूछा उसकी सहेली ने, तो मीराबाई ने दुए में बताया और उसका वापस वर्णन दिया। सुगन बास को नाक दियो और आंख दी जग जोवन को काम के काज दो हाथ दिए प्रभु पांव दिए पृथ्वी घूमन को कान दिए सुनने को प्राण जब जीव दी भज मोहन को जब जीव दी भज मोहन को कवि गंग कहे सब ठीक कहो तो प्रभु पेट दियो पत खोवन को। जो भगवान राजी कैसे होता है तो ये शरीर के अंदर वो दिए आंखें दिए उसको मंदिर जाओ उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो उसके प्रसाद चढ़ाओ तो सखी तेरो किस्मत रीज राम अरे सखी तेरो किस्मत रीज भगवान। तो पाँव दिया प्रभु पृथ्वी घूमन को हाथ दिया कर काम माही मेरो इस्मत रीजय राम अरे माही मेरो इस्मत रीजय भगवान। अरे सखी तेरो किस्मत रीजय राम तो के नैन दिया प्रभु दर्शन करण को नैन दिया प्रभु दर्शन करण को कान दिया सुन ज्ञान माही मेरो इस्मत रीजय राम अरे माही मेरो इस्मत रीजय भगवान। अरे सखी तेरो किस्मत रीजय राम तो के मुख दियो प्रभु शोभा कारण मुख दियो प्रभु शोभा कारण जीव दी रट राम अरे माही मेरो इस्मत रीजय राम माही मेरो इस्मत रीजय भगवान। सखी तेरो किस्मत रीजय राम तो कह पुत्र दियो प्रभु वंश बधारना पुत्र दियो प्रभु वंश बधारना और कन्या दिनी कर दान अरे माही मेरो इस्मत रीजय राम माही मेरो इस्मत रीजय भगवान। कह मीरा बाई गिरधर लाल अरे जन्म जन्म एहसान माही मेरो इस्मत रीजय राम माही मेरो इस्मत रीजय भगवान। तो इस तरीके से मीरा ने उसको अपने सहेली को बताया कि भगवान खुश होने के लिए अपन को शरीर दिया है उसी शरीर से अपन चढ़ावा करो उससे मंदिर जाओ पाँव से चल के जाओ दर्शन करो। तो वो उसमें भजन में बोला एक साइन कर लेना।
मेरा सवाल है I think I've always tried to judge my actions based on two things. One is on conscience, what my mind tells to be right and wrong, and the constitution. And if it is fitting the constitution and the conscience, and then that is the right action to do as an individual, as a citizen of this country, and as also a human being to take. And our constitution that way is kind of a conscience of the country, collective conscience of the country. When we start doing things which is contrary to the conscience, we can keep working on improving or enhancing our own conscience or our understanding of what is right and wrong. But when we start doing things which are drastically against the conscience or the collective conscience, which is called as a constitution, then what happens is we start breaking the fabric of this nation, just like an individual would break his own self. So yeah, be it gives tremendous strength also, right? That there is a constitution that is backing you, which is constantly telling you that there were these individuals who studied, worked, and struggled, and found out that okay, these kind sets of letters, right? These sets of sentences will give strength, will give spine to what you want to do. This will always be there as a protection for you. Whether those protection is immediately available or not is immaterial, because you see this in a slightly longer framework. You don't see it in a today or tomorrow, what happened or not. No, that's not how you see it. You see it in a longer framework, and you see the constitution coming back and ascertaining that yes, there is inherent strength. It is difficult for a 70-year-old nation like ours with such diverse and apparently different even thought processes, languages, culture, everything, to come together and adhere to a particular set of, let's call it a set of sentences, and say that no, this defines us. This somehow allows us our individual freedom, at the same time also gives us a collective identity, right? It gives us our individual differences and helps us to come together as an Indian. And I think as long as you as an individual or I as an individual, I'm conscious of the fact that I'm not going against the constitution or against my own conscience, then it's no more a struggle. It's just what you are supposed to do. There are hardships, and but then that's how I think almost all nations' life there would have been time when their own constitutions have been challenged or questioned. The really strong constitutions with inherent strength have always triumphed, and I think it's a duty of us as citizens, as much as the constitution is trying to protect us, it's our duty to keep reading it, keep discussing it, keeping it alive. Keeping it alive doesn't mean that it is not yet amended or it is not destroyed or removed. Keeping it alive means it is part of our day-to-day discussions, that whether it is informing our decisions, whether it is informing our conversations. So that way, I think each generation, like constitution is part of India's founding or origin story, right? If you have to tell a Spider-Man or a kind of a thing, this is part of our origin story. And that origin story has to be told and retold to every generation. That foundational mythology has to be confirmed and retold to every generation. It can't be said that once we had a Constituent Assembly debate, everything is settled. No, that was a discussion for that generation. And they came to a conclusion, this is what is right. We believe that is still right, but we are not probably ready to have that conversation as a collective form. I think that discussion needs to happen with every generation, not just as just reading out the preamble. No, each part of it, discuss, disagree, can understand the inherent strength. It is not a nice thing to have that we have a constitution. That is the best way for us to not just survive, but as thrive as a nation and also as an individual. So constitution is a set of documents that we have as a tool, not just because we want to be nice to everybody, no, but it gives us the collective strength. It gives us a collective opportunity to survive and thrive, both as a nation and as an individual. The fundamental rights or the human rights, or that we call, those are inherent. Just being born in this world, every person should have certain amount of rights on this. And our constitution, to the extent possible, giving the largest possible
definition that is there is recognizing that right as a citizen to do. At the same time, ensuring that it remains a collective conscience also, right? So that is the beauty of that we call as a constitution. There you will say that there are a lot of contradictory things, but at the same time, some of those are not contradictory if you take it in a larger sense. Now, when it comes to freedom of speech and expression, I think the challenge to freedom of expression is one way to look at it is just as an individual right. I should have a freedom of expression to say whatever I feel like, and hence I should see. That's one way. Definitely that is there, irrespective of whether it contributes or not to a larger discourse. The other way is also, see, when we are not encouraging another point of view, what we are doing is we are collectively dumbing down ourselves and the society. And when we dumb down our society, right, if I say something and people around me are going to just say, oh, great, right, that's it, yes sir, you know, all correct. If you have said something, then there should be some value to it, without applying your own mind to it and giving that answer, you know, or a counter to that. What is happening is there are 5 people. Ideally, the average intellect of that 5 people should have been higher than one person. But if the one person is the one who is driving the rest of the 5 people's yes or no, then you have actually dumbed it down. The collective intelligence of that group has been dumbed down. So freedom of expression, not just because it is a right. Freedom of expression is also, again, I would say, it helps us to disagree, to find, and you take a look at science. The science has improved just because there was always a focus on somebody else questioning what was before. And if you had said no, because it was Newton who said it, Einstein can't challenge it, then we wouldn't have what we have today, right? So that has to be clear. For the progress of the society, for the progress of the country, we have to constantly encourage questioning. We have to encourage dissent. Even for the fact of dissent, we should encourage that somebody coming and say, no, we don't agree. Yes, you shouldn't agree, right? And as a society, I think we should encourage our children to question ourselves, our younger ones to question ourselves, our, you know, because we also have a certain amount of hierarchy built in our society. So the constitution that way is also breaking that. It's as much as a document of 1947 or a 1950, as much it is a document of, let's say, 2050. Because at some level, it is also telling that break all this hierarchy that you have, which we have not been able to do even after 70 years, and say that, you know, just come across and express as an individual, as a citizen, an equal citizen in this country. That's it. And if you are able to do that, you are the most patriotic person in this country, because you are expressing what you think is right for yourself and for the country. If you believe something is wrong and keep quiet because it is beneficial to you, right? There I would call us anti-national, right? Because you know that this vehicle is going to go into a valley, it's going to fall into a reef or something. But you know that, let me just keep quiet here because that's the best way to do it. You don't want to comment on 100 issues, right? Because that might cause me an issue in my job or in something else. So for your own benefit, you decide, benefit or greed or fear or whatever you call it, you decide to keep quiet. And when you do that, you're actually in there by not expressing, by giving that decision to not express an opinion on something that you feel strongly, you are doing a disservice to the nation. You're doing a disservice to the nation. So it is not just that it is a good to have thing, freedom of expression. It's not that it's a must to have thing. It's actually essential for us as a society and a country to grow. This is not going to, the nation is not going to end today or 2020 or 19 or 50 or something. No, it's going to grow another 50, 100,000 years. And we have come this far by questioning, and we will go further also by questioning each other, and especially questioning those who are in power, not questioning each other or those who are, in less power than you. No, you can disagree with them, but you shouldn't be trying to question them into silence. You should be questioning those who are above you in power, because you are seeking answers from this. And to be honest, if you don't ask questions in your own country, where do you ask questions? And if you don't ask questions to your government, whom do you ask questions to? Right? If you don't ask questions in your own country, where do you ask questions? And if you don't seek answers from your own government, whom do you seek answers from? So this is the fundamental aspect. I feel it's not about, I also have a freedom of expression, so I will call you a Deshdrohi.
That's not freedom of you can interpret it that way, but that's not furthering the discourse in any way. Seeking those answers from people in power would definitely improve us as citizens and progress us as a society. जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम दिनेश है। संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया। वोट देने का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया और बहुत सारे अधिकार दिया। अगर आज संविधान नहीं हो पाता तो हम सभी को समानता ही नहीं दी जाती है, सभी में भेदभाव किया जाता है। लेकिन आज संविधान की वजह से ही हम सभी को समान समझा जा रहा है, सभी में सभी को समानता ही दी जा रही है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हम अलग अलग समुदाय के बच्चे आते हैं, हर समुदाय के बच्चे आते हैं, तो वहाँ पर सभी बच्चों को या तो कुर्सी पर बैठाएंगे या सभी को नीचे बैठे, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को समान समझा जा रहा है। और एक मैं नारा लगाना चाहूँगा, संविधान रहेगा तो देश बचेगा, संविधान रहेगा तो देश बचेगा। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ गारंगे है आणि હું ભુજન થિયેટરમાં છેલ્લે 20 વર્ષ એઝ એક્ટર के तौर पर काम કરી रहा। बाबा साहेब आम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करा तो उन्हें दाखवड़ा का अगर भारत का विकास करने का हो तो भारत का घनिया सारिया बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसका माइन जिदा उन्ना कौड़ा का हर एक मानसा को समानता से चलने का अधिकार हक है उसका। पिछुना कौड़ा का भाई हर एक मानसा को स्वतंत्रता होना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता होना चाहिए, जीने की स्वतंत्रता होना चाहिए, शांति से रहने की स्वतंत्रता होना चाहिए, पीछे किसी साथी भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई भी धर्मा साथी या कोई जात पाता साथी। आज के तबके में सब घना सारा हो रहा, अमुक अमुक घनिया सारिया पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने आपको सत्ता में रखने के लिए इसका फ़ायदा उठाई रहा, गलत फ़ायदा उठाई रहा। दलितां की लिंचिंग हो जाती है, एंटी डीएनटी के जो लोग रहते हैं, जो महिला रहती है, उनके रैप हो जाते हैं। तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने यही को उड़ा भारत ऐसा देश कड़ा जड़ भेदभाव रखा जाता है। भारत एक विविधता में एकता का देश है। जो कोई भी कंट्रिया में ऐसा कड़ा, वो चाहे इंग्लैंड ले लो, चाहे वो डेवलप कंट्री अमेरिका ले लो, चाहे रशिया ले लो, जर्मनी ले लो, उठ ऐसे कंट्रिया में इस तरीके का कड़ा का जो भारत के धर्मा के लोग, वो चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उनको भी अपने भाई रीति मानना का, अपने परिवार रीति मान्य करना, उनका साथ ही खाना पीना खाना का, उनका साथ ही कोई भेदभाव नहीं रखना का, समानता से चलाना का। ऐसी घनिया सारिया बातें बाबा साहेब आम्बेडकरान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखोरिया। बाबा साहेब आम्बेडकरान कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में लिखा दिया ना पूरे धरतिया पर। यो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 26 जनवरी को उन्हें रिलीज करा दिया ना। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है जो भारत बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकरान लिखोड़ा। बस यही बात कहने की थी। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ोहरा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना चाहूँगी। आपको संविधान कैसे सामाजिक समानता देता है? क्या संविधान के बिना लैंगिक, जातिगत, धार्मिक आदि समानता संभव है? संविधान हमें समान अवसर प्रदान करता है। संविधान के बिना लैंगिक, जातिगत, धार्मिक आदि समानता संभव नहीं है। संविधान के अंदर हमें हमारे मौलिक अधिकार दिए गए जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। उसमें राइट टू इक्वालिटी है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी की बात कही गई है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल फॉर लॉ, यानी कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। ऐसा नहीं है यदि कोई अमीर है तो उसे कम पनिशमेंट दी जाएगी और कोई गरीब है तो उसे उसको ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी। आर्टिकल 15 इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके जेंडर के बेसिस पे, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी रोज़गार में अवसरों की समानता। जैसे आप सभी को पता होगा कुछ कैटेगरीज़ हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे SC, ST, OBC।
SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। यानी सभी को मौका मिला और सभी को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। यानी हम सभी लोग एक ही लाइन पर खड़े हैं, ऐसा नहीं कोई आगे है कोई पीछे है, सभी लोग एक बराबर हैं। आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म किया गया है। आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, जिसकी भी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है, वह सभी वोट दे सकते हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे वह स्त्रीलिंग हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, सभी लोगों को समान अवसर दिए गए हैं वोट देने के। धन्यवाद। जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं बगरू जयपुर से हूँ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सामाजिक समानता क्या होती है। तो सामाजिक समानता से आशय है कि सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, और ये अधिकार हमें संविधान प्रदान करता है। संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमें समानता का अधिकार प्राप्त है। ये हमारा मूल अधिकार है और ये हमें संविधान ही प्रदान करता है। इसी के आधार पर हमें लिंग में समानता, जाति में समानता और धार्मिक में समानता, ये सभी प्रकार की समानता हमें संविधान ही प्रदान करता है, क्योंकि संविधान के मूल अधिकारों में ये लिखा हुआ है कि सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हों। ऐसे तो समाज में तो लोग कोई किसी को ऊपर मानता है, कोई किसी को नीचे मानता है, सभी लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, सभी लोगों एक दूसरे को असमानता के नज़रों से देखते हैं, किंतु संविधान ही सबको समानता का अधिकार प्रदान करता है। धन्यवाद। मैं एडवोकेट सुरेश चंद्र बैरवा दौसा से। भारतीय संविधान एक अद्भुत और चमत्कारिक संविधान है। खास तौर पे दलित, महिला, बच्चे, पिछड़े, मुस्लिम, इन सब के लिए एक पवित्र ग्रंथ के रूप में है। जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम सचिन कुमार बेरवा है और मैं बगरू जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं सूचना के अधिकार के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सूचना का अधिकार संविधान के बिना मिलना संभव नहीं है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान का होना अन्य आवश्यक है। और भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें नागरिकों को संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं और देश का संचालन भी सुचारू रूप से चल पाया है। इस प्रकार लोगों को कोई भी सूचना प्राप्त करनी होती है तो वह सूचना के अधिकार के द्वारा सूचना प्राप्त करते हैं। संविधान नहीं होता तो नहीं तो कोई हमें अधिकार मिलते, नहीं कोई सूचना मिल पाती। जिंदाबाद साथ। ಜೈ ಭೀಮ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಜೋಳದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ. ಬೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ PG ಮಾಡಿ, PhD ಮಾಡಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿ, 10 ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಈ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಿನ ಹಾಗೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಬೆರೆತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಧಿಕಾರರಹಿತ ದಮನಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಂವಿಧಾನ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ನನಗೆ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ನಾನು ನ್ಯಾಯಪರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ನಾನು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು, ಆ ಬರಹವನ್ನು, ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
जोगी पहिंजे जोग मारी ओला जोगी नो ला 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 वो मिया वो जोगी पहिंजे जोग मारे जोगी पहिंजे जोग मां बेली अजा घुरी जा गच वडी टुकी अंगड़ाला पर अंदर मारियूं मच अरे पर पहिंजी में पचड़े वो मियाला जॾहिं बापू ॿार ना निकिरे गुजारी हुन भी हाल फकीरा दा जीते दामुल चार कवडियां पर हारे दामुल हीरा हीरा वो हीरा लहदा लखा करोड़ा पर कोडी दामुल कसीरा हीरा लहदा लखा करोड़ा आखे पीर बुलेसा ओ पीर बुलेसा हो जे हार न मनी वो बे मुर्सद बे पीरा ओ मरी वेंदे मनड़ा बाड़ो बेसन मरी वेंदे मनड़ा बाड़ो बोली बोल मिठड़ी बोली बोले मरी
जन आवाज और सत्यमेव जयते के साथियों को मेरा सलाम। पिछले 1.5 साल में कोविड की वजह से हमने बहुत भयावह स्थितियां देखी हैं। पहले अप्रवासी मजदूरों की तकलीफें और उसके बाद सेकेंड वेव के दौरान अपने ही साथियों को ऑक्सीजन न मिलने पर दम तोड़ते देखा है हमने। और इसी दौरान ऑक्सफैम इंडिया जो है एक अध्ययन कर रही थी, क्योंकि एक तरफ ये त्रासदियाँ हो रही थी। हम लोग ऑक्सफैम इंडिया के रूप में समझना चाहते थे कि भारत में अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, और इस अध्ययन के आधार पर कुछ बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आए हैं। और वो आंकड़े हमको दिखाते हैं कि कैसे भारत गैर बराबरी की तरफ बढ़ रहा है, असमानता की तरफ बढ़ रहा है। भारत में जो कुछ अमीर लोग हैं वो और अमीर हो रहे हैं, और ज़्यादा तक अधिकांश लोग भारत में गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो 2 आंकड़े आपको मैं बताता हूँ। भारत में कोविड के पहले मार्च 20 तक 102 अरबपति थे, और इस 1 साल में, कोविड के 1 साल में वो 142 हो गए, मतलब 40% की बढ़ोतरी। दूसरी तरफ भारत में 84% ऐसे लोग थे, 100 में 84 लोग ऐसे थे जिनकी आमदनी घट गई। एक और आंकड़ा देता हूं, इसी दौरान इस 1.5 साल में, कोविड के 1.5 साल में अरबपतियों ने अपनी संपत्ति दुगनी कर ली, जबकि इस दौरान करीब 4.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो ये साफ दिखाता है कि हमने जो अर्थव्यवस्था बना रखी है उससे असमानता बढ़ रही है, और जितना देश में नई पूंजी आती है, जितनी नई आय होती है, वो जो अरबपति हैं उनकी जेबों को मोटा करती है और गरीब लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये हम लोगों को मंजूर नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि ये लाजमी है, इसको बदलने के कई तरीके हैं। और मैं आपको 1-2 बातें कहूँगा। एक बहुत ज़रूरी है, हम सब बात करते हैं गरीबी रेखा की, पर मुझे लगता है अब समय आ गया है हम लोग अमीरी रेखा की एक तरह से बात करें। कम से कम जिनके पास बहुत धन है, जो अरबपति हैं, उन पर हम लोगों को पूंजी का एक टैक्स लगाना ज़रूरी है, जिसको अंग्रेजी में वेल्थ टैक्स कहते हैं, जिससे वहाँ से हम थोड़ा तो पैसा निकाल सकें, और वहाँ से पैसा निकलेगा तो वो सरकार को पैसा मिलेगा। पर ये महत्वपूर्ण है, जब वो सरकार को पैसा, 100 में 84 लोग ऐसे थे जिनकी आमदनी घट गई। एक और आंकड़ा देता हूं, इसी दौरान इस 1.5 साल में, कोविड के 1.5 साल में अरबपतियों ने अपनी संपत्ति दुगनी कर ली, जबकि इस दौरान करीब 4.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो ये साफ दिखाता है कि हमने जो अर्थव्यवस्था बना रखी है उससे असमानता बढ़ रही है, और जितना देश में नई पूंजी आती है, जितनी नई आय होती है, वो जो अरबपति हैं उनकी जेबों को मोटा करती है और गरीब लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये हम लोगों को मंजूर नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि ये लाजमी है, इसको बदलने के कई तरीके हैं। और मैं आपको 1-2 बातें कहूँगा। एक बहुत ज़रूरी है, हम सब बात करते हैं गरीबी रेखा की, पर मुझे लगता है अब समय आ गया है हम लोग अमीरी रेखा की एक तरह से बात करें। कम से कम जिनके पास बहुत धन है, जो अरबपति हैं, उन पर हम लोगों को पूंजी का एक टैक्स लगाना ज़रूरी है, जिसको अंग्रेजी में वेल्थ टैक्स कहते हैं, जिससे वहाँ से हम थोड़ा तो पैसा निकाल सकें, और वहाँ से पैसा निकलेगा तो वो सरकार को पैसा मिलेगा। पर ये महत्वपूर्ण है, जब वो सरकार को पैसा मिले तो सरकार उस पैसे को आम लोगों की शिक्षा और आम लोगों के स्वास्थ्य में लगाए। और बहुत ज़रूरी है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि हर व्यक्ति गरिमा से अपना जीवन जी सके। तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि हम इस असमानता को अस्वीकार करें, एक समान समाज की कल्पना करें और उसके लिए आगे बढ़ें। और मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा, हम सब मिलकर संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। संविधान में आर्टिकल 38 अलग से कहता है कि ये देश की और सरकार की जिम्मेदारी है कि हम एक समान समाज की तरफ बढ़ें,
और इस आर्टिकल 38 के अलावा मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर संविधान की प्रस्तावना पढ़ें, प्रस्तावना में भी समानता, बराबरी एक बुनियादी स्तंभ है। तो अगर हमें ईमानदारी से संविधान के सपनों को पूरा करना है तो हमें एक समान समाज की कल्पना करनी होगी, हमें गैर बराबरी के साथ संघर्ष करना होगा और एक बराबर समाज की स्थापना करनी होगी। शुक्रिया। હલો, મારું નામ હિતેશ છે અને આજે એક સવાલ પર વાત કરવી છે. એ સવાલ છે ભારતનું બંધારણ ના હોત તો શું? તો બસ આજ એક સવાલ પર વાત કરવી છે જેના વિશે હું આગળ વાત કરીશ. ભારતનું બંધારણ ના હોત તો મહિલાઓને વોટનો અધિકાર મળ્યો ના હોત. ભારતની મહિલાને શિક્ષણનો અધિકાર પણ ના મળ્યો હોત જો ભારતનું બંધારણ ના હોત તો. ભારતની મહિલાને પિતાની સંપત્તિમાં સમાન ભાગનો અધિકાર પણ ભારતના બંધારણના કારણે જ મળેલો છે. ભારતનું સંવિધાન હોવાના કારણે જ ભારતની દરેક મહિલા એક સમાન છે. તે પછી ધનાઢ્ય પરિવારની મહિલા હોય કે પછી સામાન્ય વર્ગમાંથી આવતી મજૂરી કામ કરતી મહિલા હોય. આમ ભારતમાં વસતી દરેક મહિલા શારીરિક, માનસિક અને લૈંગિક રીતે પુરુષોની સમાન છે અને આ બંધારણના કારણે સુરક્ષિત કાયદાથી રક્ષિત છે. હવે આગળ વાત કરીએ તો ભારતના બંધારણના કારણે જ ભારતની દરેક મહિલાને સમાન કાર્યમાં એક સમાન વેતનનો અધિકાર પણ મળેલો છે. કોઈ પણ જાતિના વ્યક્તિ માટે પોતાની પસંદગીનું કાર્ય કરવું સંભવ નહોતું કારણ કે વર્ણ વ્યવસ્થા પ્રમાણે દરેક જાતિના માણસોને કાર્ય નક્કી કરી દેવામાં આવ્યા હતા. વર્ણ વ્યવસ્થા પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવેલા કાર્ય સિવાય અન્ય પસંદગીનું કોઈ પણ કાર્ય કોઈ પણ જાતિના માણસથી કરી શકાય એમ નહોતું અને જો કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું કરે તો એના માટે ચોક્કસ સજા નક્કી કરવામાં આવી હતી. આ વર્ણ વ્યવસ્થાના પરિણામે હતું. બંધારણના કારણે દરેક વ્યક્તિ પોતાના પરંપરાગત વ્યવસાયને છોડીને પોતાની પસંદગીનો વ્યવસાય કરી શકે છે અને દેશના કોઈ પણ ખૂણામાં કોઈ પણ જગ્યાએ જઈને તે પોતાનો વ્યવસાય સ્થાપી શકે છે. આ ઉપરાંત વાત કરીએ તો અત્યારે હાલ બંધારણ હોવા છતાં ભારત દેશની અંદર અમુક ચોક્કસ પ્રકારના કાર્યો અમુક ચોક્કસ પ્રકારની જાતિ જ કરી રહી છે. જેમાં કોઈ પણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ હોતી નથી કે કોઈ પણ સ્પર્ધાના એમાં થતી નથી અને અત્યારે હાલ પણ અમુક ચોક્કસ કાર્યો અમુક જાતિઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम कुलदीप कौर है और मैं दिल्ली ग्रुप नंबर 2 से हूँ। जैसा कि एक सवाल है, क्या अगर संविधान नहीं होता तो महिलाएं वोट डाल सकती थी या किसी भी जाति के लोग अपनी पसंद का कार्य कर सकते थे? तो मेरा मानना है कि अगर संविधान हमारे भारत देश में लागू नहीं होता तो ये करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता. हमारे भारत देश का संविधान इन सबसे ऊपर किसी भी जाति व्यवस्था को नहीं मानता और हर एक इंसान को गरिमापूर्ण जीवन जीने की आज़ादी देता है ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो. और भारत देश ऐसा देश है जहाँ पे हमारे संविधान में सबको समानता की निगाह से देखा जाता है और सबके साथ समता का व्यवहार किया जाता है. अगर ये सब ना हो तो कोई भी किसी भी जाति का या किसी भी लिंग का आदमी अपनी आज़ादी का पूर्ण उपयोग नहीं लागू कर दी जाए तो वही सब चीज़ रंग भेद, कोमवाद, जातिवाद वो सब वापिस आ जाएगा. वो सब चीज़ें आज ना हो उसके लिए आज संविधान का अमल हुआ है. आज संविधान का अमल किया जाता है. जब संविधान का अमल हुआ था तब जातिवाद, कोमवाद सब हट गया था, सब मिट गया था. कहीं भी ये सब चीज़ें नहीं होती थी. मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा कि एक समय में दलित समाज ने अपनी बारात, लड़के की बारात निकाली थी किसी ने घोड़े पे बैठ के. तो दूसरे समाज के लोगों ने उनका विरोध किया था. वो ऊंच नीची, आप समझ रहे हो, ऊंच नीची का जो भेदभाव होता है वो मतलब वो कर रहे थे. तब संविधान के कारण उन्हें, संविधान के नियम कानून के कारण उन्हें उनका हक मिल पाया और उन्हें उनका न्याय मिला. मतलब ये कि संविधान के कारण किसी भी जाति के लोग
को न्याय मिल सकता है, अपने हक के लिए वो खड़े हो सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं। संविधान के इस कारण ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। संविधान के कारण ऊंच नीचे दूर हुई है। मित्रांनो नमस्कार, तुम्हा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। आपण जेव्हा मागे वळून बघतो तेव्हा आपल्याला असं आढळतं की भारतात चातुर्वर्ण्य व्यवस्था होती, मनुस्मृतीची व्यवस्था होती आणि त्या काळात समता, बंधुता, सामाजिक न्याय याच्याबद्दल बोललं जात नव्हतं। ते बोलावं लागलं कारण जेव्हा आपण नवी घटना आणू बघितली, इंग्रजांना आपण हकलावून लावलं आणि भारताचं एक नवं विधान, भारताचा एक रोडमॅप काय असेल याच्याबद्दल जेव्हा विचार करायचा आपल्या पूर्वजांनी ठरवलं, त्यावेळेस त्यांनी हेही ठरवलं की इथली जी काही पिसलेली जनता आहे, अस्पृश्य जनता आहे, सर्वहारा वर्ग आहे, त्यांना देखील समसमान अधिकार मिळायला हवेत। आणि त्यावेळेस आपल्या पूर्वजांनी असं ठरवलं की मनुस्मृतीला नाकारायचं, इथल्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेला नाकारायचं आणि एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मत, एक मूल्य ही व्यवस्था लागू करायची। ही व्यवस्था जेव्हा लागू झाली तेव्हा मला असं वाटतं की खऱ्या अर्थानं इथे सामाजिक न्यायाची चळवळ उभी राहिलेली आहे। सर्वांना समसमान अधिकार देण्याचा जो प्रयत्न आपल्या पूर्वजांनी केला तो प्रयत्न आपण समजावून घेतला पाहिजे। आजच्या काळात अनेक लोक असं आपल्याला म्हणतील की त्यांना हिंदू राष्ट्र आणायचं आहे, रामराज्य आणायचं आहे, त्यांना कोणत्या एका जाती धर्माचं राज्य आणायचं आहे, पण त्यावेळेस आपण ठणकावून त्यांना सांगितलं पाहिजे की बाबांनो, मनुष्य हा एक बुद्धिमान प्राणी आहे आणि हा बुद्धिमान प्राणी विचार करण्याची क्षमता ठेवतो आणि विचार करण्याची क्षमता ठेवणारा कोणताही माणूस नेहमी पुढे जाण्याचं ठरवतो, मागं येण्याचं नाही। आपण काळानुरूप अपडेट होत राहिलं पाहिजे। आपल्याला मनुस्मृतीची, चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेची, त्यांच्या घालून दिलेल्या परंपरेचा वीट आला होता, त्याच्यामुळे आपण ते अपडेट केलं। पुन्हा आपण आता जुन्या व्हर्जनमध्ये जाण्यात काहीही अर्थ नाही। तेव्हा त्याच्यामुळे आपली जी काही मंडळी असा जो विचार करत असतील त्यांना आपण समजावून सांगितलं पाहिजे की समता, बंधुता, सामाजिक न्याय या किती महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, ज्यांनी तुमच्या आमच्या मनामध्ये, तुमच्या आमच्या वागण्यामध्ये, तुमच्या आमच्या बोलण्यामध्ये आणि विचार स्वातंत्र्यामध्ये एक मूलभूत असा बदल केलेला आहे। इथली महिला, इथले पुरुष, इथले ट्रान्सजेंडर, इथले पिछडा वर्ग, इथले मायनॉरिटीज, अल्पसंख्याक सगळ्यांना एकाच पातळीवरती घेऊन येणारं संविधान तुमच्या आमच्या जगण्याचा एक विश्वास बनला पाहिजे, एक धागादोरा बनला पाहिजे, तो आपल्या चालण्या बोलण्याचा साईन बोर्ड बनला पाहिजे। आणि हा साईन बोर्ड जेव्हा आपण लक्षात ठेवू तेव्हा आपल्याला जे काही आपल्या पूर्वजांनी, आपल्या धुरीणींनी जे काही ठरवलेलं आहे, त्यांच्या संकल्पनेतला जो भारत आहे तो भारत जर साकार करायचा असेल तर संविधानाचा साईन बोर्ड बघून आपल्याला पुढचा मार्ग ठरवावा लागणार आहे। पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि संविधानावरती काम करूयात याच मागणीसह तुम्हाला जय हिंद। थैंक यू। जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम पुष्पा है और मैं बदनौर ब्लॉक से हूँ। मेरा टॉपिक है कि अगर संविधान नहीं होगा तो क्या हमें अपने मनपसंद धर्म के अनुसार कार्य करने की आज़ादी होगी? तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, क्योंकि आज संविधान होने के बावजूद भी कुछ लोग अपने मनपसंद कार्य करने की आज़ादी नहीं रखते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर संविधान मतलब मैं संविधान के हिसाब से चलूँगा या अपने धर्म के खिलाफ गया तो कहीं मुझे अपने समाज से दूर तो नहीं कर दिया जाएगा या मुझे गांव से बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा, तो वो अपने पसंद का कार्य नहीं करता है। और अगर संविधान ही नहीं होगा तो फिर कैसे लोग अपने मनपसंद कार्य करने की आज़ादी रखेंगे? तो मेरे हिसाब से धर्म संविधान का होना ज़रूरी है और सब हर व्यक्ति को उसे अपनाने की आज़ादी रखनी चाहिए। साथियों, मेरा नाम सीमा है, मैं बगरू जयपुर से हूँ। आज मैं आपको शिक्षा से संबंधित कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा संविधान नहीं होता तो सभी व्यक्तियों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के समूह को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अगर हमारा संविधान शिक्षा का अधिकार नहीं देता तो हमारे देश में कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग के लोग ही पढ़ पाते। और अगर आप मुझे धर्म से संबंधित पूछेंगे तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा राष्ट्र एक पंथ निरपेक्ष
अगर हमारा राष्ट्र पंथ निरपेक्ष नहीं होता और एक हिंदू राष्ट्र ही होता तो हिंदू धर्म के लोगों को ही पढ़ने का अधिकार होता। तो अगर संविधान नहीं होता तो सभी व्यक्तियों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता। जिंदाबाद साथियों, मैं नदीम अख्तर दिल्ली यूथ क्लस्टर से। आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार, हमें सूचना का अधिकार तभी मिला क्योंकि संविधान में आया और संविधान हमारा लचीला है, इसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो जब सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया, उसके बाद कोई भी आम नागरिक सरकार से कोई भी सवाल कर सकता है कि किस विभाग में कितना पैसा खर्च हुआ, डिस्पेंसरी में कितनी दवाइयाँ आई, कितने स्टाफ की नियुक्ति कैसे हुई, उसमें कोई धांधली तो नहीं है। इसे बनाने का मकसद ही यही था कि जो भ्रष्टाचार सरकारी विभागों में फैला हुआ था उसे कैसे दूर किया जाए, और उसमें काफ़ी कामयाबी भी मिली है कि आज आम नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे कमज़ोर हो, वो सरकार से डायरेक्ट सवाल कर सकता है। ये तभी मुमकिन हो पाया है क्योंकि हमारे पास संविधान है, संविधान में इसे जगह मिली। और चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी विभाग हो, एक आम नागरिक डायरेक्ट सवाल कर सकता है। और उसमें मात्र 10 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर लेना पड़ता है। प्लेन पेपर पे आप एप्लीकेशन लिखकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि कोई नियुक्तियाँ कैसे हुई है, या आपको कोई भी शक है कि किसी डिपार्टमेंट में धांधली चल रही है तो उसके खिलाफ आप आम नागरिक सवाल कर सकता है। तो इससे बहुत भ्रष्टाचार दूर हुआ है और इसी को देखते हुए अभी एक नया कानून बनाने की बात चल रही है, जवाबदेही कानून। सरकार जो वादे करती है इलेक्शन के टाइम में, क्या वो पूरा कर पा रही है? तो उसके लिए अब जवाबदेही कानून की भी बात की जा रही है। उसके लिए राजस्थान में जगह जगह रैलियाँ निकाली जा रही हैं। तो ये इसीलिए इसमें चेंजेस करने की बात कही जाती है आम नागरिकों के ज़रिए कि ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। और ये तभी मुमकिन हो पाया है क्योंकि संविधान में अगर इसे जगह मिल जाती है तो सरकार गलत काम करने से रुकती है। उन्हें ये डर बना रहता है कि कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मसला हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो। हर आम नागरिक को सवाल उठाने का अधिकार है और उसके 1 महीने के अंदर उस विभाग को जवाब देना पड़ता है। अगर जवाब नहीं दिया है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी जाकर कोर्ट में भी जाकर बात कर सकता है कि जवाब क्यों नहीं दिया गया। तो आज किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी तो वो लोग डरे रहते हैं कि कोई गलत काम करने से पहले कहीं कोई सवाल ना कर दे। तो इस तरह से भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। इस तरह के कानून और बनने चाहिए। जिंदाबाद। हमारा नाम अकला है, मंगनियारी जाति। केसिया बालम गीत है, राजा महाराजा पधारते हैं, उसी टाइम में केसिया बालम आओ सा पधारो नहीं हमारे देश। मेरा नाम दरियाबाई, गांव बेसाड़ा और मंगेनियार पाल्टी और केसरिया बालम गीत है जो राजा महाराजा पधारे से गाया जाता है। मेरा गांव सियाणी हनीफा बाई, केसरिया बालम गाना। हमारा नाम धड़ाऊ, केसरिया का बालम गाना है। मेहमान आता है, गाना बजाना करता है सब साथ में। आओ
जिंदाबाद साथियों, आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं 75th सेलिब्रेशन को मनाने के लिए और हमारी सब नागरिकों की ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारा जो देश का संविधान है और हमारे संविधान के जो मूलभूत अधिकार हैं वो उन सभी कमज़ोर वर्ग को, औरतों को, लड़कियों को और जो एक सोशो इकोनॉमिकल जो कमज़ोर है उनकी वो सुरक्षा कर सकें। लेकिन असल में ऐसा दिखता है हमें पिछले 7-8 सालों से कि वो जो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार अभी सिर्फ कागज़ पर है और ज़मीन पर हमें ऐसे हथकंडे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे सरकार भी मौजूद है, जहाँ पे मीडिया मौजूद हैं, जहाँ पे जो आज़ाद विचारधारा की जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी सरकार से इन्फ्लुएंस आकर सरकार की हिंदुत्ववादी भाषा, दहशतगर्द, फ़िरका परस्त, औरतों के खिलाफ जाने वाली मर्दाना सोच लगातार एक दिन ब दिन एक टारगेट की जा रही है। और वो टारगेट जो है वो ख़ास तौर पर हमने अभी जस्ट रिसेंटली अगर देखें तो सुबी और दिल्ली ऐप्स में जो भाषा इस्तेमाल की गई है, जो औरतों की डिग्निटी के ख़िलाफ़, औरतों की इज़्ज़त पर के ख़िलाफ़ जो बातें की गई हैं, हमारी सरकार खामोश है, हमारी प्राइम मिनिस्टर खामोश है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि वही प्राइम मिनिस्टर लाल किला में कह रहे हैं कि मैं मुसलमान औरतों के अधिकार की बात करता हूँ, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट में अपनी सीना ठोकते थे कि हमारी एक पार्टी है जो मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐप्स के खिलाफ जाने वाले लोग, ऐसे ऐप्स के खिलाफ जाने वाली सोच के खिलाफ ये सरकार कुछ नहीं कह रही है। ये कहाँ से लोग आते हैं? ये सरकार को कहना पड़ेगा, लेकिन वो कह नहीं रही। तो फिर ये जो जश्न मनाया जाएगा, ये जो तिरंगा लहराया जाएगा, जो सीना ठोक कर ये जो गलियों में जो शोर और ज़ोर लगा के सारी मर्दाना भीड़ जो जमा होगी, वो कौन लोग होंगे? वो ये भीड़ वही है जो लिंचिंग करते हैं, ये भीड़ वही है जो जय श्री राम नहीं बोलने वाले लोगों को मारपीट करते हैं। ये वही भीड़ है जो मुसलमान औरतों के खिलाफ बलात्कार और छेड़छाड़ और कई ऐसे हरकतें करते हैं। तब तो ये भीड़ जो है के खिलाफ हमारी सरकारें कुछ नहीं कहती है। तो बहुत शर्मिंदा होते हैं हम ऐसे समय पर जब लोकतंत्र हम क्या बोलते हैं कि लोकतंत्र के नाम से हमारा देश है, हमारा देश लोकतंत्र के ऊपर खड़ा है, पर एक्चुअली वो लोकतंत्र किसका है? यहाँ पे कहने की, बोलने की आज़ादी किसको है? इस देश में जो मुसलमानों पर जो लगातार टारगेट हो रहा है और उस टारगेट के खिलाफ हमारी जुडिशल सिस्टम, हमारा मीडिया, हमारे सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिपेंडेंट हैं वो सब खामोश हैं। तो ये लोकतंत्र किसका है? ये संविधान हमारे जो अधिकार दिए गए हैं, ये संविधान एक कागज़ पे ही रह जाएगा। ये संविधान का पूरा भगवाकरण होता जा रहा है। ये संविधान के नाम से ये हर 5 साल में इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे 5 सालों के दौरान ये दहशतगर्द फैलाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र के जो नारे और जो इनकी रूट्स तैयार हुई है, जिसमें हमने अभी रिसेंटली धर्म संसद में देखा कि हम लोकतंत्र संसद से हम धर्म संसद पर आ गए हैं। और इस दौर में इलेक्शन का दौर चल रहा है जहाँ सारे संसदीय मंत्री सड़कों पर आकर कैंपेन कर रहे हैं और वो धर्म संसद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे हैं। कई दिन लगे उनको अरेस्ट करने में। यानी हमारे कानून भी जो है वो इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि ये जो संत है, ये महंत है, ये इतने इस तरह से बोलते जा रहे हैं और हमारी सरकारें खामोश है। तो ये लोकतंत्र कहाँ पर रहा है? ये संविधान अगर है तो संविधान के रखवाले जो है, जो जुडिशल सिस्टम है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, उन्हें बाहर आके कहना पड़ेगा। नहीं तो ये हिंदू राष्ट्र की तरफ से ये जा चुका है, इसका भगवाकरण बन चुका है। ये सिर्फ एक ज़ुबानी बातें हमारे सामने रह गई है कि देश लोकतंत्र में है, देश में संविधान है, लेकिन अगर हमारे अधिकारों को, औरतों के हकों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को उसका हक हकूक़ नहीं मिलेगा, उसकी हिफाजत नहीं मिलेगी, तो ये इस तरह के संविधान और लोकतंत्र का नारा लगा के कुछ नहीं होने वाला। तो सभी नागरिकों को इकट्ठा आना पड़ेगा, सभी तरह के लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा। నమస్తే అండి, నా పేరు జేవి జయవర్ధన్. ఐమ్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ లాయర్. సో ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయే విషయం పేరు షుడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా బీ రీప్లేస్డ్ బై ట్రెడిషనల్ వాల్యూ సిస్టమ్స్. అంటే మన భారతీయ రాజ్యాంగం
ని మనుస్మృతి లేదా షరియా లా లాంటి గ్రంథాలతో మార్చివేయచ్చా? దీని కాంటెక్స్ట్ మన రీసెంట్గా జరిగిన ఒక మతానికి చెందిన హేట్ స్పీచ్ అలిగేషన్స్ హరిద్వార్లో. సో మొట్టమొదటిగా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఢిల్లీ సల్తనత్ కాలం నుంచి ఎప్పుడైతే మన దగ్గర 2 మేజర్ కమ్యూనిటీస్ ఏర్పడ్డాయో మన సొసైటీలో, అప్పటి నుంచి there was a practice of separating the religious law and the secular law in its application. అంటే జవాబిత్ అనేవాళ్ళు అండి సెక్యులర్ లాని, రిలీజియస్ లాని షరియా అనేవాళ్ళు, ముస్లిమ్స్కి అప్లై అయ్యేది. అట్లాగే కొంతమంది రాజులు హిందూస్కి కూడా వాళ్ళ లా వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. సో ఆ కాలం నుంచి వస్తున్న ప్రథని డెమోక్రసీ వచ్చాక ఇంకా కాంక్రిటైజ్ చేయడం జరిగింది. అప్పటి సిన్స్ we chose to be a secular democracy, unlike say Pakistan or any other country which chooses to embrace a certain religion, మనం ఎప్పటికీ మన మెయిన్ గ్రాండ్ నామ్ ఒక సెక్యులర్ లాగా ఉంచాలి, అండ్ అదే మన కాన్స్టిట్యూషన్. సో దీన్ని కొంచెం అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే అండి, ఐ విల్ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జాన్ రాల్స్, హూజ్ అన్ అమెరికన్ థింకర్, అండ్ హిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వీల్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్. అంటే మనకి ఈ థియరీ ఏంటంటే మనం ఏ పొజిషన్లో ఉండబోతున్నామో తెలియదు అనుకోండి. ఒక సిచ్యువేషన్లో వి విల్ ఆల్వేస్, మనం ఎప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఎంచుకునే పథకం లీస్ట్ అడ్వాంటేజ్డ్ పర్సన్కి బెస్ట్ అసిస్టెన్స్ దొరికేలా చూసుకుంటాం. సే 3 గొయ్యలు ఉన్నాయండి, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క లోతులో ఉంది. ఒకటి తక్కువ లోతు, ఒకటి మీడియం లోతు, ఒకటి చాలా ఎక్కువ లోతు. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర 3 నిచ్చెనలు ఉన్నాయి, 3 మనుషులు ఉన్నారు. ఆ 3 మనుషుల్లో వాళ్ళు ఎక్కడ ఏ గొయ్యిలో ఉంటారో తెలియనప్పుడు ఆ 3 కలిసి అగ్రీ చేసేది ఏంటంటే డీపెస్ట్గా ఉన్న అన్నిటికంటే అతి లోతు అయిన గొయ్యిలో అన్నిటికంటే పెద్ద నిచ్చెన పెడతారు. ఎందుకంటే ఎవరు అక్కడ ఉన్న ఆ గొయ్యిలో కొంచెం ఈజీగా అనుకూలంగా బయటికి రావడానికి ఉండాలని అట్లా అగ్రీ చేస్తారనమాట. సో లాజికలీ మనం ఎప్పుడు మోస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్డ్ పర్సన్ని. जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम अनीता है और मैं दिल्ली से हूँ और मेरा ग्रुप नंबर 2 है। मैंने जो विषय चुना है वो ये है कि अगर संविधान नहीं होता तो आप अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय चुन पाते? क्या मनरेगा होता? अगर संविधान नहीं होता तो हम अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय नहीं चुन पाते और मनरेगा नहीं होता, क्योंकि जब संविधान नहीं था तो उससे पहले बहुत सारे भेदभाव होते थे लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र को लेकर, जिसकी वजह से हम अपने व्यवसाय को नहीं चुन पाते। क्योंकि उस टाइम पे ये था कि जो महिला होती थी, महिलाओं को ये हक नहीं था कि वो अपने घर से बाहर निकल सके या अपने घर के लोगों के सामने बोल सके, तो वो रोज़गार नहीं कर पाती, वो किसी भी व्यवसाय में नहीं जा पाती, ठीक है। और उस टाइम पे इतना भेदभाव होता था कि अगर जो नीची जाति के लोग होते थे और वो लोग ना, उनको इतना अधिकार नहीं था कि वो अपने से ऊंची जाति के लोगों के सामने अपनी बातों को रख सके या उनसे आंखों में आंखें मिलाकर बात कह सके। उनका ये था कि अगर आप लोहार हो तो आपका बेटा भी लोहार बनेगा और उसकी आने वाली सारी पीढ़ियाँ भी लोहार ही बनेगी। अगर आप बड़े ही हो तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ या आपका बेटा जो भी है वो भी बड़े ही बनेगा। लेकिन संविधान के आने के बाद ये हुआ है कि संविधान में लिखित रूप में है कि आप किसी भी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र कहीं से भी हो, आप सब एक बराबर हो। आप अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय को चुन सकते हो। अगर मुझे डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है या नर्स बनना है या फिर IAS बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन के बेस पर बन सकती हूँ। ये मेरा अधिकार है और ये लिखित रूप में है। लेकिन अगर संविधान नहीं होता तो मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं होता और मैं शायद ये सब नहीं बन पाती। और इस टाइम पे महिलाएं भी जॉब कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, तो वो इसलिए क्योंकि संविधान में है, संविधान में उनको अधिकार मिला है कि महिलाएं भी बाहर जा सकती हैं, वो भी जेंडर के
आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। अगर लड़का कमा के ला रहा है तो लड़कियां भी कमा के लेकर आ सकती हैं। लेकिन अगर संविधान नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய முகவுரையானது இந்தியா ஒரு இறையாண்மை உள்ள சமதர்ம மதசார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசுன்னு சொல்லுது. இதன் அடிப்படையாக வச்சு தான் இந்திய அரசியலமைப்பானது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு. இதனுடைய பொருள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சமூக நீதி தான். இந்தியாவில் இருக்க எந்த மக்களும் ஜாதி, மதம், இனம், பாலினம், பிறப்பிடம், நிறம் உள்ளிட்ட எந்த காரணங்களுக்காகவும் அவர்களுடைய உரிமைகளானது மறுக்கப்படக்கூடாதுங்கிறது தான் இதனுடைய பொருள். ஆனால் நம்ம இதை விட்டுட்டு நம்முடைய பாரம்பரிய விழுமியங்களை அடிப்படையாக வச்சு இந்திய அரசியலமைப்பை வடிவமைக்கிறதுங்கிறது நம் நாட்டிற்கான ஒற்றுமைக்கும் ஒருமைப்பாட்டுக்கும் எதிராக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பானது அனைவருக்குமானதாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம பாரம்பரிய முறைப்படி போனோம்னா இந்திய பாரம்பரியத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா முக்கியமானதும் முதன்மையானதும் தவிர்க்க முடியாதமாக இருக்கிறதுங்கிறது ஜாதி அமைப்பு, வர்ணாசிரம அடிப்படையிலான ஜாதி அமைப்பு. இந்த ஜாதி அமைப்பானது 4 விதமான படிநிலைகளை கொண்டிருக்கு. மேலே ஒரு ஜாதி, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாதி, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாதி, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாதி. ஸோ இப்படி பார்த்தோன்னா இதில் உயர்ந்த ஜாதியினருக்கு தான் எல்லா வகையான உரிமைகளும் வழங்கப்படும். இருக்கிறதுலே தாழ்ந்த ஜாதிக்கு எந்த விதமான உரிமைகளும் வழங்கப்படாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜாதி அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிற்போக்குத்தனமான நம்பிக்கைகளை நம்ம பயன்படுத்தி வந்திருக்கோம். குறிப்பாக பெண்களுக்கு எதிரானது எல்லாமே பிற்போக்குத்தனமானது. பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளில வரக்கூடாது, அவர்கள் படிக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அந்த ஜாதி அமைப்பினுடைய முக்கிய சாராம்சமாக இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம அடிப்படையாக வச்சு நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பானதை நம்ம வடிவமைக்கணும்னு நினச்சா அது முற்றிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியினரை மட்டுமே எல்லா விஷயமும் கிடைக்கக்கூடியதாகவும் மற்ற ஜாதியினருக்கு எதுவுமே இல்லாததாகவும் அமையும். என்னை கேட்க போனால் இந்திய அரசியலமைப்பு மேலும் முற்போக்குத்தனமாக இருக்கணுமே தவிர நம்ம பழைய பாரம்பரியத்தை கொண்டு வச்சு அதை பிற்போக்குத்தனமாக கொண்டு போகக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய கருத்து. सभी को जिंदाबाद। मेरा नाम अनु है, मैं थाना गांव से हूँ। यहाँ एसएफडी की वीन का वार्ड में लाइब्रेरी चलाती हूँ। मैं आपको संविधान के बारे में बताना चाहती हूँ। भारतीय संविधान हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने का मार्ग दिखाता है। हमारा संविधान हर भारतीय नागरिक को अपना सपना मजबूत कराने का मार्ग बताता है। अगर संविधान ना होता तो औरतें अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाती। भारतीय संविधान हमें अपने मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। संविधान में प्रत्येक भारतीय को अपनी पसंद का धर्म चुनने की आज़ादी प्रदान कराता है ताकि प्रत्येक धार्मिक समूह भारत में सुरक्षा और अपनापन महसूस कर सके। जिंदाबाद। നമസ്കാരം, ഞാൻ കമറുന്നിസ കാടാമ്പുഴ. നമുക്കറിയാം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടേത്. ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു പൗരന് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളിലൊന്നാണ് തങ്ങളുടെ മതാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനും തനിക്കിഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കുവാനും മതാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുമുള്ള അവകാശം. നമുക്കറിയാം, ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണ് ആത്മീയതയുടെ മണ്ണാണ്. ഒരു ആത്മീയ ചിന്താധാരകളല്ലാതെ വെറും ഭൗതിക തലത്തിലല്ല നമ്മുടെ ഭാരതീയർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പ്രധാനമായി കാണുന്ന 3 മതങ്ങൾ, ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, ഈ 3 മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ മതപണ്ഡിതർ ഇന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ മതത്തിൻ്റെയും മതപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തടസ്സമില്ല. അതിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്കും ഇവിടെ വളരെ സുഖസുന്ദരമായി ജീവിച്ചു പോകാം. എന്നാൽ മതത്തിന് വേണ്ടി രൂപീകൃതമായ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോലും അവിടെ അതാത് മതങ്ങളിലുള്ളവർ ഇന്ന് വിവേചനം നേരിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മതത്തെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അതിനകത്തുള്ള ആചാരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻജിയുടെ വാക്കുകൾ ഈ വേളയിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങളൊരു മതവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുക. നിങ്ങളൊരു നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാം.
അത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന. നന്ദി, നമസ്കാരം. जिंदाबाद सभी को. मेरा नाम आरती है. मैं थाना गांव में रहती हूँ और मैं थाना गांव में लाइब्रेरी चलाती हूँ और मैं शिक्षा के अधिकार के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर संविधान नहीं होता तो हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता, वो उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती, क्योंकि पहले कुछ खास चुनिंदा लोगों को ही शिक्षा मिल पाती थी, जैसे कि ऊंची जाति वालों को. तो अब हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है. जैसे पहले महिला पढ़ लिख नहीं सकती थी, तो अब वो पढ़ लिख कर कुछ अपने सपने पूरे कर सकती है. वो जैसे चाहे अपना जीवन व्यतीत कर सकती है. वो पढ़ लिख कर कुछ बनेगी, अपने सपने पूरे कर सकती है. और गरीब व्यक्ति भी शिक्षा का अधिकार पा सकता है. गरीब व्यक्ति भी शिक्षा प्रदान कर सकता है. जिंदाबाद दोस्तों, मेरा नाम श्रवण है. मैं दिल्ली ग्रुप नंबर 2 से हूँ. आज मैं जिस विषय पर यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह विषय है, क्या संविधान हमें समानता प्राप्त करवाता है? क्या संविधान के बिना समानता, लैंगिक, जातिगत या फिर धार्मिक समानता संभव है? तो मैं मानता हूँ नहीं, संविधान के बिना यह सब चीज़ें संभव नहीं है. क्योंकि यदि हम अपने देश का इतिहास भी उठाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो पहले की व्यवस्थाएं थी वो केवल जातिवाद थी, या फिर इसमें उच्च जाति के लोग या फिर जो लोग श्रेष्ठ थे, जो लोग पूंजीपति थे, उनके द्वारा ही सब व्यवस्थाएं चलाई जाती थी, जिनमें सब अधिकार उनको दिए जाते थे, जिससे समाज दो वर्गों में बट गया था, जिसमें एक वर्ग था दलित, जिनके सब अधिकारों का शोषण होता था, उनको बहुत ही अनेक तरीक़ों से प्रताड़ित किया जाता था. मगर सबसे अच्छी चीज़ हुई जब हमारा संविधान अमल में आया, क्योंकि हमारा संविधान के जो अनुच्छेद 14 से 18 हैं वो क्लियरली कहते हैं कि समानता का अधिकार भारत में हर एक व्यक्ति को है. जिसमें 14 जो अनुच्छेद है वो कहता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, कानून उसको एक समान संरक्षण प्राप्त करवाता है बिना किसी भेदभाव के. जिसमें हमारे अनुच्छेद 15, 16, 17 भी, जिसमें छुआछूत के बारे में बात की गई है कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी. कोई व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो कानून के खिलाफ कार्य करता है. जिसमें अनुच्छेद 16 कहता है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो जाति हो, लिंग हो या फिर कोई भी तरीके से, हम किसी भी व्यक्ति को मौक़ों से वंचित नहीं रख सकते हैं. अनुच्छेद 15 भी यही बात कहता है. तो वह यह सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे हर एक चीज़ का अधिकार है. वह जिस तरीके से चाहे कानून के तहत कार्य कर सकता है. जिसका सबसे बड़ा फल है कि आज महिलाओं की जो उन्नति हमारे समाज में हुई है, क्योंकि इससे पहले महिलाओं को कहीं ना कहीं वंचित रखा जाता था और दलित परिवारों की महिलाओं से जो शोषण होता था वह हम कल्पना भी नहीं करना चाहते आज के समय में, जो हमने कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में देखा है. तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जिसकी सबसे बड़ा एक फल है कि जब से हमारा संविधान अमल में आया तब से हमारे देश ने कितनी उन्नति की है. आज देखा जाए तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में हमसे पीछे नहीं हैं. महिला पुरुष एक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हमें अत्यंत खुशी होती है जब कोई महिला हमसे आगे भी निकलती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं समाज में बराबरी लाने के लिए. तो उम्मीद करता हूँ कि अगर हम संविधान को अपने जानेंगे, समझेंगे तो आगे यह उन्नति और बढ़ेगी. धन्यवाद. अभिज्ञा भी मेरा साथ देने वाली है. आप सब लोग उसको एनकरेजमेंट दे दीजिए. राम कहा रहमान राम कहा रहमान कहा, राम कहा
नृत्य का रूप रे, एक नृत्य का रूप रे। कैसे खंडित कल्पना रोपित, कैसे खंडित कल्पना रोपित, आप अखंड स्वरूप रे, आप अखंड स्वरूप रे, आप अखंड स्वरूप रे। राम कहो रहमान कहो, राम कहो रहमान कहो, कान्हा कहो महादेव रे। पार्श्वनाथ कहो को ब्रह्मा, पार्श्वनाथ कहो को ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयं रे। राम कहो रहमान कहो, निज पद रमे राम सो कहिए, निज पद रमे राम सो कहिए, रहम करे रहमान रे। निज पद रमे राम सो कहिए, रहम करे रहमान रे। कर्ष करे कान्हा सो कहिए, हर्ष करे कान्हा सो कहिए, महादेव निर्वाण रे। राम कहो रहमान कहो, राम कहो रहमान कहो, कान्हा कहो महादेव रे। पार्श्वनाथ कहो को ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयं रे। राम कहो पर से रूप पारस सो कहिए, पर से रूप, पर से रूप, पर से पर से रूप पारस सो कहिए, ब्रह्मचिन सो ब्रह्म रे। ब्रह्मचिन सो ब्रह्म रे। पर से रूप पारस सो कहिए, ब्रह्मचिन सो ब्रह्म रे। इह विधि साधु आप आनंद घन, इह विधि साधु आप आनंद घन, चेतनमय निकल रे। राम कहो रहमान कहो, राम कहो रहमान कहो, कान्हा कहो महादेव रे। पार्श्वनाथ